24 घंटे है आपके पास, या तो आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप मारे जाएंगे। ये कहना है इजराइल डिफेंस फोर्सेस का। गाजा के ऊपर इस तरह के फ्लायर भी बरसाए गए हैं ताकि लोगों को ये मिल जाएं और उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो और वह अपनी जान बचाकर निकल जाए। लाउड स्पीकर भी लगे हुए हैं जो लगातार ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि इजराइल की सेना और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इसमें अगला स्टेप क्या होने वाला है, आईडीएफ ने इस विषय पर क्या कहा है, गाजा के लोग आईडीएफ की इस वार्निंग पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं और हमास ने इस वार्निंग को सुनने के बाद गाजा के लोगों से क्या कहा है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। इजराइल की सेना गाजा का ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट कर रही है, यानी इजराइल की सेना गाजा की गलियों में जाएगी और वहां से शुरू करके गाजा शहर के नीचे सुरंगों का और बंकरों का शहर बसा रखा है, वहां छिपे आतंकवादियों को एक एक करके चुन चुन के मारेगी और इसमें सिविलियंस की जान न जाए, इसलिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के लोगों के लिए लाउड स्पीकर में ये वार्निंग दी है कि आप क्षेत्र को खाली कर दीजिए और जब तक दूसरी अनाउंसमेंट ना हो, जब तक आपके लिए ये इलाका सेफ न हो जाए, तब तक आपको किसी के भी कहने पर यहाँ नहीं आना है। छोटी सी क्लिप है जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ऑफिशियली जारी की गई है, जो मैं आपको एज इट इज दिखा रहा हूँ। The message that we sent, obviously in Arabic, to the local population in Gaza City, informing them of the need to evacuate from where they are for their own safety. This is the message. The IDF calls for the evacuation of all civilians from Gaza City. I'll zoom in a second. From Gaza City, from their homes southwards for their own safety and protection, and to move to the area south of Wadi Gaza, the river Gaza, as shown on the map. We distributed this with a map as well. And in order to understand what we're talking about, Gaza City, a major center, the biggest center of population in the Gaza Strip. If we zoom in a bit, here we have Gaza City, and more to the south, Gaza River. You can see it here, this path. That is the Gaza River, and what the statement is saying, that people living in Gaza for their own safety should move south of this river. A river being something clear and understandable for everybody, whether or not they have a map or no. I'll continue to read. The Hamas terrorist organization waged a war against the state of Israel, and Gaza City is an area where military operations are taking place. This evacuation is for your own safety. You will be able to return to Gaza City only when another announcement permitting it is made. Do not approach the area of the security fence with the state of Israel, which means telling the Gazans, do not go this way towards the security fence, do not approach the border, only go south. Again, out of a concern for safety of non-combatants. I'll continue to read. Hamas terrorists are hiding in Gaza City, inside tunnels, underneath houses, and inside buildings populated with innocent Gazan civilians. Civilians of Gaza City, evacuate south for your own safety and the safety of your families, and distance yourself from Hamas terrorists who are using you as human shields. And the last paragraph, in the following days, the IDF will continue to operate with significant force in Gaza City and will make extensive efforts to to avoid harming civilians. That's the message that we issued a few hours ago to Gazan civilians, and the aim here is to minimize the damage to civilians. There are significant combat operations ongoing, and we are preparing for future and the continuance of our combat operations, and out of an understanding that there are civilians here whom are not our enemy, and we do not want to target them. We are asking them to evacuate so that we will be able to continue to strike military targets belonging to Hamas in the Gaza Strip. सेना का प्लान ये है कि नदी के उत्तर की तरफ का जो क्षेत्र है, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत की जाए और इसे हमास फ्री किया जाए। लेकिन इसमें बाधा यह आती है कि इस इलाके में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। गाजा के उत्तर के क्षेत्र में हमास भी ज्यादा एक्टिव रहता है। सुरंगों का उसने यहाँ एक हाईटेक या कहें कि बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है। लाउड स्पीकर से लगातार वार्निंग के साथ साथ गाजा के उत्तर की तरफ फ्लायर्स भी गिराए गए हैं ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो।
यह उसकी फोटो है और यहाँ आप इस फ्लायर का इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आपको नदी के दूसरी तरफ जाना है। इजराइल की तरफ से जब यह वार्निंग ब्रॉडकास्ट की गई है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने दक्षिण की तरफ मूव करना स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन लोगों ने एक मांग रखी है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, बिजली काट ही दी गई है और गाजा के उत्तर में रहने लायक जगह नहीं बची है। इसलिए लोग दक्षिण की तरफ चलना शुरू कर चुके हैं ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट में वो बेवजह न मारे जाएं। इजराइल की सेना की वार्निंग सुनने के बाद हमास ने ठीक उल्टा किया है। उसने लोगों से कहा है कि आपको घर छोड़ के दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि इजराइल की वार्निंग को इग्नोर करो। इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि हमास निर्दोष लोगों को अपने बचाव के लिए प्रयोग कर रहा है, क्योंकि अगर हमास को गाजा के लोगों की फिक्र होती तो वह भी इजराइल की मांग का समर्थन करता और कहता कि आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाइए और जब इजराइल की सेना यहाँ आएगी तो हम उनसे लड़ेंगे। जबकि उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया है और लोगों से कहा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यानी हमास भी चाहता है कि निर्दोष लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे जाएं। इजराइल की सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया कि हमास किस तरह सिविलियन को खतरे में डालता है। अभी हाल ही के दिनों में जो इजराइल ने हमास पर हमले किए हैं वह हमास के ड्रोन कैपेबिलिटीज को खत्म करने के लिए किए गए हैं। हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए ड्रोन भी इकट्ठे कर रखे थे और वह लगातार इनका प्रयोग करके इजराइल पर हमले करता था। हमास की कुछ सुरंग और बंकर्स को नष्ट किया गया है, लेकिन अब इजराइल की सेना बचे हुए कचरे को वाइपर से साफ करना चाहती है और इसलिए निर्दोष लोगों को कह दिया गया है कि वह उत्तर से दक्षिण की तरफ चले जाएं। इस अनाउंसमेंट पर और हमास और लोगों के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।